स्क्रीन बताइए मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, सो good morning everyone. Today we are start our the new lecture series regarding the law of contract. What we do here is like that कि हम we are going to discuss about the more theoretical portions. I will be try to make the whole contract in the story and to be revise that contract and memorize that contract every part with the contract law like a story with you. What you need to do, you have to be by a bare act of the law of contract, and every day with the class you have to be go with that bare act. बेयर एक्ट के साथ हमें चलना है, उसके सारे प्रोस्पेक्टस को समझना है. यू हैव टू बी मेमोराइज द सेक्शंस, डेफिनेशंस, प्रोवाइजोज, explanations, and more very important with the illustrations. The illustrations which are used in a law of contract bare act are always we come directly in the exam of UGC net. Clear? So you have to be go with these things. I will be go in a simple definitions way and the theoretical way. Contract, I personally think if we both have the go through with the LLB and LLM, so I presume that you very well know about the contract and the one of the easiest subjects I think for a people. Get it? Now start the contract. How the contract is formed first of all. In a very initial stage, first the thing is come offer. Section 2 are defined the every definitions with them. Offer and proposal is a thing where we give someone with our willingness with that thing that he will be accepted. Point to be clear with that कि जब भी हम ऑफर देंगे हम ये सोच के ही देंगे कि वो एक्सेप्ट कर लेगा. ये सोच के कोई ऑफर नहीं देता कि वो रिजेक्ट करेगा. हम बेस्ट ऑफर देते हैं जो वो एक्सेप्ट हो जाए. वी शो अवर विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग. हम दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि या तो ऐसा हो जाए या ऐसा नहीं हो. दैट इज द ऑफर. इफ दैट ऑफर आर cumulate with the acceptance, second party are accept that offer, then it become the promise. If the second party give the consent on that offer, I may give the offer to you, you give the acceptance on it, it become the promise. Person who give the promise is called promiser, and the person who accept the promise is called promising. Clear? या फिर मैं कहूं ऑफरर और ऑफरी. यहां तक चीजें क्लियर? नाउ द थिंग इज दैट ऑफर दिया, एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस हुआ. प्रॉमिस विद द सेम थिंग इन सेम सेंस. नाउ सेकेंड स्टेप इज दैट whenever a promise occurred, we have to do give some consideration और take some consideration. एक पार्टी ने जिसको ऑफर दिया वो कुछ करेगी और जिसने ऑफर दिया वो कुछ करेगा. दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे. मुझे सेव चाहिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे सेव दे रहे हैं. वी ऑल हैव बोथ हैव देम द डूइंग समथिंग विद ईच अदर. सो द प्रॉमिस cumulate with the consideration कि अब हमने ऑफर तो कर दिया, प्रॉमिस भी कर दिया, उसे फुलफिल भी कर रहे हैं, उसका काम भी कर रहे हैं. That is called a consideration. And when the promise and consideration are cumulated with each other, it will form a agreement. When a promise combined with the consideration, वादा भी हुआ और पूरा भी हुआ, पूरे करने की भी बात तय होगी कि आप ये करना, मैं ये करूंगा, हमने ये बात तय कर ली, वो एग्रीमेंट बन गया. Till now it's just a agreement, just a consensual agreement between the two parties, but till now there is a no legal enforceability with the agreement. agreement हजारों बनते हैं, रोजाना बनते हैं, पर किसको लीगली इन्फोर्स करा सकते हैं? एग्रीमेंट विच कैन बी लीगली इन्फोर्स ओनली दैट एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. If I say what is the contract? Contract is an agreement which is enforced by law. जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो सकता है वही कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्लियर?
अगर उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, आप और हम ही बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करना, मैं ऐसा करूंगा, और हम ये कह देते हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे कभी भी और ना ही इसे लीगल इन्फोर्स कराएंगे, उसी एग्रीमेंट में लिख दे, तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा जीवन भर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो इन दिस वे वी कैन बी सेज दैट all agreement are the contract but all contract are not a agreement. Sorry, all contract are the agreement but all agreement are not the contract. पहले एक चीज एग्रीमेंट बनेगी, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगी। तो एग्रीमेंट बड़ी बकेट है और कॉन्ट्रैक्ट छोटी बकेट है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हों ये श्योर नहीं है। Clear here? Okay. Now we go with the another thing. What's the next? Okay, it's a life of a contract. I will be going that way also. अब कॉन्ट्रैक्ट की जिंदगी चलेगी कैसे? सबसे पहले देखो आया ऑफर। Whenever the offer come, three things can be possible. Either it accept or reject or the counter offer. अगर वो रिजेक्ट हुआ, अगर वो रिजेक्ट हुआ तो ऑफर खत्म। क्लियर? नाउ वी कम विद द काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या है? मैंने आपसे कहा कि क्या आप अपना घर 500 रुपए में बेचेंगे? देन यू रिप्लाई टू मी, आई विल सेल इन 400 रुपीज। आपने ऑफर करा, ठीक है? आप यहां पे ये बात समझना, मैंने आपसे ये कहा कि क्या ए ने बी से कहा कि क्या 500 रुपए में आप अपना घर बेचेंगे? बी ने कहा, ए ने कहा कि क्या आप 500 रुपए में अपना घर मुझे देंगे, मुझे बेच दोगे? बी कहता है मैं तो 600 रुपए में बेचूंगा। काउंटर ऑफर आया यहां से। क्लियर? यहां से काउंटर ऑफर आया। अब यहां पे ए बिना इसका रिप्लाई करे अगले दिन बी के पास 600 रुपए लेके पहुंच जाए, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी वो ऑफर की स्टेज में है, अभी वो ऑफर की स्टेज में है, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ। बी पे ये लायबिलिटी नहीं कर सकता कि नहीं जी आपने जो मुझसे कहा था 600 में बेचूंगा, हाँ भैया मैं 600 में बेचने के लिए तैयार हूं, पर तुझे बेचूंगा ये तो मैंने नहीं कहा, ना तूने मुझे 600 का ऑफर दिया। आई जस्ट गिव अ कोटेशन टू यू कि आपके घर में आपकी दुकान के प्राइस लिस्ट मुझे दे दीजिए, मीनू कार्ड दे दीजिए कि कौन सी सब्जी कितने रुपए की है। मीनू कार्ड देखने से मतलब ये नहीं है कि अब आपको वो ले ही लेंगे उसी रेट में या फिर वो सीन रहेगा। आप ऑफर करेंगे मीनू कार्ड देख के, फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अगर यहाँ पे ए द्वारा से एक मैसेज करता है कि कैन यू बाय सेल योर हाउस टू 600 टू मी, और बी यहाँ पे फिर से कहता है यस, देन द ऑफर हैज बीन बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? चलो, थर्ड चीज थी एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्ट हुआ तो दो बातें, या तो उसके साथ कंसिडरेशन होगी या कंसिडरेशन नहीं होगी। अगर उसके साथ कंसिडरेशन नहीं होती तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जनरल रूल सेज दैट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ देयर इज अ नो कंसिडरेशन विद द एग्रीमेंट देन इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? बट देयर इज अ सम ऑफ एक्सेप्शन इज देयर। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि गिफ्ट के केस में और प्रॉमिसरी स्टॉपल के केस में हम वहाँ पे यू कैन अलाउ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वी कैन गिव अ समथिंग टू यू इन अ लव एंड अफेक्शन, या फिर उस किसी ने कभी मेरी मदद करी थी एंड आई प्रॉमिस टू यू कि आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर, और अब मैं उसे किसी को कोई पैसे दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न में मुझे कुछ देगा तभी वो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि उसने मदद करी थी इसलिए मैंने ये काम करा है। ठीक है? प्रॉमिसरी स्टॉपल। So the gift and the case of promissory estoppel, you can make a contract in this way. Clear? और कंसिडरेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा। चलो, अब यहां तक एक बात क्लियर हुई। अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, ये तो क्लियर है। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो दो बातें होंगी, या तो वो होगा परफॉर्म, क्लियर, या तो वो
परफॉर्म होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस होगी, या फिर वो ब्रीच होगा, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ब्रीच कहां पे हुआ? सेक्शन 73 में। अच्छा, एक चीज और है इनके बीच में, एक अल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोविजन है जहां पे नोवेशन, रिसेशन और रेमिशन है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। यू जस्ट कैप दैट थिंग इन योर माइंड कि भाई तीन बातें हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म बन गया तो तीन चीजों से खत्म होगा, या तो परफॉर्म हो गया, परफॉर्म होती कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपने जो कहा मैंने, आपने कर दिया, जो मैंने कहा मैंने कर दिया, बाद थिंग हैज बीन डन, या फिर ब्रीच हो गया, आपने करा ही नहीं, या फिर तीन बात हुई। तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को और खत्म करा जा सकता है, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन। नया कॉन्ट्रैक्ट बना दे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट किसी टर्म को कैंसिल कर दें, या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जैसे सपोज मैंने आपसे वादा करा था कि मैं आपको 5,000 रुपये लौटा दूंगा। अब मैं आपके पास आया कि जी मेरे पास तो 2,000 है, यू जस्ट सेड टू मी कि कोई बात नहीं 2,000 दे, बात खत्म। अब 5,000 की लायबिलिटी नहीं बचती। अब आप कल को मुझसे इस बात पे क्लेम नहीं करेंगे कि नहीं जी 3,000 मेरे बच रहे हैं। यू जस्ट बी ओके डन, ठीक है। रेमेडीज, अब ब्रीच हो गई, नाउ द थिंग कम्स, परफॉर्म हो गया तो डन है, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन एक अलग चीज होगी, रेस्टिट्यूशन। इफ द ब्रीच अकर द व्हाट द रेमेडी यू हैव, एक रेमेडी होती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक अलग से है, और यू विल बी गो इन अ कोर्ट एंड मेक अ कंपल्शन ऑन अनदर पार्टी टू परफॉर्म योर कॉन्ट्रैक्ट, गेट इट। या फिर ये अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, रेस्टिट्यूशन, रेसेशन आर दीज थ्री थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन। आई विल बी गो इन दैट। एक तो आप बस अभी ये समझें कि एक तो भैया परफॉर्मेंस हो सकती है, दूसरा डैमेजेस मिल सकती है, भाई परफॉर्म तो नहीं करवा रहा, पैसे ले ले, क्लियर। और तीसरी एक बात ये हो सकती है कि इंजंक्शन भी आ सकती है। इंजंक्शन इज व्हाट? इंजंक्शन इज दैट कि इफ समवन इज गोइंग टू ब्रीच योर कॉन्ट्रैक्ट देन यू कैन इंजेक्ट दैट गाय, यू कांट ब्रीच इट। आपको उसको रास्ते में ही रोक दिया, यू कांट डू इट, क्लियर। दैट इज द थिंग। एक बार समझ लिए, सारा चार्ट देख लें। ऑफर आया, एक्सेप्टेंस हुई, कंसिडरेशन मिला, कॉन्ट्रैक्ट बनी, परफॉर्म होगा, ब्रीच होगा, या फिर वो नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन में कैंसिल हो जाएगा। परफॉर्म हुआ ठीक, नोवेशन, रिसेशन, रेमिशन में गया ठीक, ब्रीच हुआ तो रेमेडी आएगी। रेमेडी में तीन बात करी है मैंने, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन। क्लियर यहां तक? इन पॉइंट्स की हम चर्चा बाद में करेंगे। रेस्टिट्यूशन, अकॉर्डेंस, सेटिस्फैक्शन एंड रिसेशन। नाउ व्हाट आई गोइंग टू टेल यू नाउ, एक दो चीजें और समझेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म, समथिंग इज रिक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10। सबसे पहले पार्टी, मेजर और साउंड। पार्टी should be 18 plus and should be the sound mind. If the party not have a sound mind and not the major, the contract is completely void. ठीक है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल का हम आगे को फिर से डिस्कस करेंगे। आई जस्ट गिव द व्यू दैट वॉइड मतलब नल एंड वॉइड, जीरो वैल्यू। वैलिड मतलब इट्स अ कंप्लीट, हैव द लीगल इन्फोर्सिबिलिटी विद देम, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, गुड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल, वैलिड और वॉइड की बीच की स्थिति है कि द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड और नॉट वॉइड, इट इज डिपेंड अपॉन द वन पार्टी। देखो दो पार्टी है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है नहीं है, अगर एक ही पार्टी पे निर्भर करता है तो ये वॉइडेबल है। अब ये कैसे निर्भर करेगा? मैंने आपको ऑर्डर करा कि 5 kg राइस के लिए, आपने मुझे भेजे 3 kg राइस। नाउ इट्स माई ड्यूटी, माई प्रिविलेज, माई आई हैव अ राइट आइदर टू एक्सेप्ट 3 kg राइस और टू डिनाई टू एक्सेप्ट कि भैया मैंने तो 5 किलो करे थे, 5 किलो दे के जा। ठीक है, अगर मैंने वो 3 kg राइस एक्सेप्ट कर लिए, सो आई मेक दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे 3 kg राइस के हिसाब से पैसे पे करने नहीं, या फिर मैंने कह दिया कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तूने गलत करा और यू हैव टेक बैड थिंग्स विद योरसेल्फ। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले एक पार्टी जरूरी है जो कि साउंड माइंड और मेजर हो।
Second thing is required the consent, free consent. Consent should be free all type of hindrance. What these are hindrance? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation एंड मिस्टेक. कॉर्जन मतलब किसी को डराना, धमकाना या फिर उसको इस तरीके से डराना कि आईपीसी में दिए हुए कोई भी ऑफेंस मैं आपके अगेंस्ट कर दूंगा अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे कंसेंट नहीं दी. अनड्यू इन्फ्लुएंस, you have a relationship with someone with the party as like that they have a influence on you. वो आप पे एक डोमिनेंट नेचर रखता है आपके ऊपर और उसके इन्फ्लुएंस में आपके आके आपने कंसेंट दे दी, अदरवाइज आप कंसेंट नहीं देते. Fraud means something fraud occurred with you, something is the silent with you, something when the parties are making content they have an intent, they will not be perform it. Clear? Misrepresentation like that, somehow like a fraud but not that much gravity. I personally think that misrepresentation में somehow fraud ही है पर उसकी वो gravity नहीं जो fraud में. Misrepresentation because of the some of the fault of the party the thing has been misrepresented in front of the another one. Clear? And last is the mistake. Mistake is simply like that, mistake regarding the subject matter between both the parties. दोनों ही पार्टियों की गलती हो सकती है, उसमें एक की हो सकती है पर वो इंटेंशनली मे भी नहीं होगी. ठीक है जी. तो फिर से एक बार आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स है. पहले पार्टी है, फिर है फ्री कंसेंट, फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट. दो बातें मैं लिखूंगा अभी, एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और एक है लॉफुल कंसिडरेशन. ध्यान से ये दो बातें समझनी. दीज आर द टू डिफरेंट थिंग. लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, दोनों ही चीजें लॉफुल होनी चाहिए. अब भाई इनमें क्या फर्क है? ऑब्जेक्ट होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या है, दैट शुड बी लीगल, लॉफुल, नॉट बी इमोरल, नॉट बी अगेंस्ट लॉ. और कंसिडरेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की एक इसेंशियल थिंग, पार्ट होता है कंसिडरेशन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है. आप मेरे लिए ये करोगे, मैं आपके लिए ये करूंगा, तो वो चीजें भी लीगल होनी चाहिए. इफ आई मेक अ कॉन्ट्रैक्ट काइंडली किल समवन, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है भैया, कंसिडरेशन अनलॉफुल है, वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. या फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि आप और हम दोनों वहाँ मिलेंगे एंड वी विल गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मेक अ डेफेमेशन टू समवन. हमने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कल कहीं मिलने का, आप आए नहीं और मैं आप पे वो लगा दूँ. अब कंसिडरेशन तो उसमें ये नहीं थी, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का किसी को डिफेम करने का या फिर सेडिशन करने का, देशद्रोह करने का है, तो ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. ठीक है, that is lawful object and lawful consideration. Fifth is about not barred by law. इतनी सारी चीजों के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कोई स्पेशल कंडीशन है कि लॉ ने ही वो बंदा बार्ड कर रखा है. जैसे कि इफ आई टेल यू इन अ केस ऑफ अ प्रॉपर्टी, परदेशियन वुमेन, पर्दानशी वुमेन का अगर आपने सुना हो कभी, एक लॉ होता है हमारे यहाँ प्रॉपर्टी एक्ट में कि अगर कोई इलिटरेट महिला है और आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड या फिर किसी और भी कारणों की वजह से उसके पास कोई प्रॉपर्टी आती है, दैट वुमेन डोंट हैव अ राइट टू सेल एंड डिस्पोज दैट प्रॉपर्टी. वो उसकी ओनर है, कंप्लीट ओनर है, पर वो उसे सेल नहीं कर सकती, डिस्पोज नहीं कर सकती, बिकॉज द लॉ प्रिज्यूम दैट द लेडी पर्दानसी हु इज अ इलिटरेट लेडी are the quite simple and not cunning woman, and possible that his relative get that property from her. उसके किन्स जो है, रिलेटिव्स हैं, उससे ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी ले लेंगे. इसलिए लॉ ने उसको आदेश ही नहीं दिया, उसे पावर नहीं दी. उन्होंने कही भाई तू उसकी मालकिन है, तो उसको यूज कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, पर तू खुद नहीं बेच सकती इसे. ठीक है, तो इट्स बार्ड बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसे बार्ड कर रखा है. Clear? So these are the things which required by the contract.
पार्टी मेजर और साउंड हो, फ्री उनकी कंसेंट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो और नॉट बार्ड बाय लॉ हो। क्लियर? These are the things which we require to be make a contract. Now we will go some of the types of contract. एक बार type of contract और हम समझेंगे। सबसे पहला है express और implied contract. Section 9 decide the express and implied contract. Quasi contract also be a part of a contract which will go in. First ये express and implied. देखो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कुछ कहा और आपने मुझे रिटर्न फॉर्म में या फिर एक प्रोसीजरल वे में कंसल्ट दी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आप प्रोसीजरल फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, मैनिफेस्ट फॉर्म में कंसेंट देते हैं तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कंसेंट नहीं दी लेकिन अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, जैसे कि मैंने आपको 5 kg राइस भेजे और उसमें लिख के बिल के साथ भेज दिए कि यू हैव टू बी पे दैट अमाउंट टू मी, आपने वो राइस यूज कर ली। इट्स मीन्स यू इम्प्लाइडली गिव द कंसेंट टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। आपका एटीट्यूड, आपका वर्क बताता है कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। गेट इट? दैट इज द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समहाउ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अवेलेबल। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। दे डीम्ड लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। दे हैव अ सम credibility like a contract but they are not have that or they are not fulfill the all essential things of contract like a contract with the minor for necessary goods। किसी माइनर के साथ उसे आवश्यकता भरी चीज़ों को पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट की बात करूं, फाइंडर ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिल जाती है देन ही हैव द ड्यूटी टू फर्स्ट सीक द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये भी एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मिल जाता है तो उसको रिटर्न करने की ड्यूटी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। गेट इट? नेक्स्ट इज अबाउट द एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। Executed are that type of contract where the performance has been already done in past। पहली परफॉर्मेंस हो चुकी है एक व्यक्ति की, अब तो दूसरे की खाली पे आउट होना है। एग्जीक्यूटरी where the performance has to be done in future, अभी होनी है। We are not in a hurry। Get it? Unilateral or bilateral, इसे somehow we can we say the general and the particular contract also। Unilateral is a contract in which the one party's acceptance is sufficient। Bilateral in a both party have to be accept the contract। जैसे कि I just generally announce who will be found my son, I will be give them the 5000 रुपीज़। अब कोई उसे लेके आ जाए उसने और कह दे लाओ जी दो 500 रुपये, तो वो एक्सेप्ट उसने खुद ने कर लिया। मुझे बताएगा नहीं कॉल करके जी मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे मिल गई तो मुझे भी 5000 दोगे। यू विल बी हैव टू बी फुलफिल माई ऑल थिंग्स विच आई ऑलरेडी सेंड टू यू। बायलेटरल की स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, पर्टिकुलर बंदे के साथ मैंने एक ऑफर करा है, उसे ऑफर भेजा है, अब वो एक्सेप्टेंस भेजेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, जहां मैंने पब्लिक एट लार्ज को भेज दिया वो समहाउ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने तो बोल दिया जिसे एक्सेप्ट करना है वो एक्सेप्ट करके सीधे परफॉर्मेंस करके मेरे पास आ जाए। ठीक है जी। क्या चीज? बायलेटरल में सर, बायलेटरल में मैंने एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखा है, उससे परफॉर्मेंस, उससे कॉन्टैक्ट करने की बात करी है, मैं उसे ऑफर भेज रहा हूँ, फिर वो एक्सेप्टेंस देगा, फिर मैं उसे एक्सेप्ट करके फिर आगे कॉन्टैक्ट होगा। बोथ पार्टी हैव टू बी एक्सेप्ट, बोथ पार्टी हैव टू बी द नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? सर एक बार एग्जीक्यूटेड और ये एक्सिक्यूटिव का और बता दो फिर एक बार दोबारा। एग्जीक्यूटेड में एक परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन है इन पास्ट में, ओके सर, एग्जीक्यूटरी में फ्यूचर में परफॉर्मेंस होगी। ओके सर। ठीक है, सिंपल। चलो अब आते हैं वैलिड, वॉइड, अवॉइडेबल। इन्हें हम आगे करके जस्ट वी गो विद द फर्स्ट, इलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल। दीज आर नॉट दैट मच अबाउट ऑफ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकी बात भी नहीं करता। illegal contract are that contract which is prohibited by law, which are against the public morality, decency and the basic essence of life। Unenforceable, the contract which cannot be enforced, these are the agreement, not the contract। clear? अब हम आते हैं अपने वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल।
Valid is a completely valid contract which are fulfill the all essentials of a valid contract. पार्टी भी साउंड है, मेजर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी लीगल है, ऑब्जेक्ट भी लीगल है, बार्ड बाय लॉ भी नहीं है, दैट इट्स अ कंप्लीटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड, विच वॉइड इज अ एग्रीमेंट. क्लियर विद दैट. कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी वॉइड. एग्रीमेंट वॉइड होता है. देखो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो वैलिड ही है ना. जब वैलिड नहीं है तभी तो एग्रीमेंट है, तभी तो वो वॉइड एग्रीमेंट है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा एक्सेप्ट इन अ वन कंडीशन, वेयर इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. क्या होता है कि पहले एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो बिल्कुल ठीक है, वो परफॉर्म हो सकता है, लेकिन सडनली कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड बन जाता है, इसे फुलफिल करना ही इम्पॉसिबल हो गया. लॉ आ गया, वॉर आ गई, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, कोरोना आ गया, इट बिकम द इम्पॉसिबल, विच आर नॉट इन द हैंड ऑफ पार्टी. किसी पार्टी की वजह से नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली बाय नेचर, बाय टाइम, जो भी कोई कारण रहा हो, पर पार्टी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है. then it become the impossible to perform the contract. The contract are frustrated in itself. That is called a frustration of contract by virtue of section 56 of Indian Contract Act. ठीक है, ये हमारा फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज वॉइड सिर्फ एग्रीमेंट होंगे. ठीक है. एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी एक छोटा सा पार्ट होता है, या फिर मैं कहूं कि एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं. एंटिसिपेटरी ब्रीच, व्हाट इज दैट? इट सेज कि द कॉन्ट्रैक्ट बना, सारी चीज ठीक है, वैलिड था अभी तक, लेकिन कुछ ऐसा समाउ हैपनिंग हुआ कि इट्स बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो हमने पहले ही मना कर दिया कि दैट वी विल बी परफॉर्म इट. ठीक है. अब ऐसा इसको अभी नहीं करते, रुको, अभी ये अलग टॉपिक है, सॉरी. फ्रस्ट्रेशन तक रखते हैं अभी, है ना. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन. ठीक है. वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, एक कंसेप्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ठीक है. अब हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपने हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक तो 23 और 24 में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के केस में आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे. 25 में आपको कंसिडरेशन के रिगार्डिंग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे कि इफ देयर इज अ नो कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज डील एज द वॉइड एग्रीमेंट. इसके अलावा 26, 27, 28, 29 एंड somehow 30, these are related with the void agreement. किस किस चीज़ों में? मैरिज, सिक्वेंस थोड़ी सी अलग हो सकती है, वो आप एक बार बेरेक से इंश्योर करेंगे. मैरिज की अगर मैं किसी को रेस्ट्रेन करूँ, आई रेस्ट्रेन समवन टू मेक मैरी. जनरली मैं आपसे कह दूं कि आप शादी ही नहीं कर सकते, दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट. ऐसा कभी हम किसी से नहीं कह सकते. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि योर मैरिज इज फिक्स्ड विद दैट गाय, तो शादी तो करने दे रहे हैं ना. या फिर मैं कह सकता हूँ कि 18 साल से पहले आपकी शादी नहीं होगी, वो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ शादी ही नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द लॉ है. ठीक है. मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मैं आपको काम ही नहीं करने दूँ, यू कांट डू दिस वर्क, यू कांट डू दिस वर्क, अगेंस्ट द लॉ. That type of agreement always be a void agreement. ठीक है. If I say I prohibited you to go on a legal way, legal frame, मैं आपको कोर्ट की मदद लेने से रोक दूँ कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी, you cannot approach the court. That is against the law, against the agreement, against the concept of the agreement. ठीक है. That type of agreement are deemed as a void agreement. एंड लास्ट इज अबाउट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और थी कि ट्रेड के केस में एक्सेप्शन है सेल्स ऑफ गुड में.
इफ़ यू नो कि कई बार ना हम गुडविल सेल करते हैं अपनी, आई सेल द नेम एंड द ट्रेडमार्क टू समवन। अगर मैंने अपनी कंपनी की गुडविल किसी को सेल करी तो उस एग्रीमेंट में मैं लिखवा सकता हूँ, सपोज मैं एक बहुत बड़ा सॉप कंपनी का मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने अपनी पूरी कंपनी किसी को बेच दी विद गुडविल, उसमें लिखा जाता है कि गुडविल भी। अब जो कंपनी, जो बंदा उसे ओवरटेक करेगा वो मुझसे लिखवा सकता है कि अब आप कभी भी शॉप का बिजनेस नहीं करोगे। रीजन भी क्या, अगर वो दोबारा से शॉप के बिजनेस में आएगा क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी एक मार्केट सेटअप है, अपने क्लाइंट है उसके, तो वो तो खत्म कर देगा मेरा सब कुछ। तो जब आप बिजनेस बेच रहे हो तो पूरा बिजनेस बेच रहे हो, दोबारा से उस इंडस्ट्री में नहीं आओगे। अगर दोबारा से आना है तो बेचा ही क्यों। क्लियर, दैट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इवन पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप छोड़ रहा है, फर्म छोड़ रहा है, तो ये नहीं कि वो फर्म से बाहर जाके फर्म जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी फर्म बना दे और उसी में लाइन में बिजनेस करने लगे, दैट विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि वो तो फिर फर्म के लिए ही हो जाएगा ना। ठीक है, सो मैरिज होगी, ट्रेड हो गया, इसके अलावा आपके पास सेकंड थिंग आई व्हाट आई सेज, मैरिज, ट्रेड एंड लीगल कोर्ट। आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लगाएंगे कि यू कांट गो विद द कोर्ट। हाँ, आर्बिट्रेशन का लगा सकते हैं कि भाई कोर्ट तो जा सकता है लेकिन पहले आर्बिट्रेशन जाएंगे या फिर पहले ट्रिब्यूनल जाएंगे, एडीआर यूज करेंगे पहले, इट कैन बी पॉसिबल। कोर्ट जाने का रास्ता चेंज कर सकते हो लेकिन बैरियर नहीं लगा सकते बिल्कुल कि अब जाएंगे ही नहीं कोर्ट। ठीक है, एंड वन थिंग इज अबाउट द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। wagering like a gambling contract, when the happening or not happening of a thing is depend upon the winning or losing of a party, that is the wagering contract। देखो कंटिजेंट भी होते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, when happening and not happening of a thing is the depend upon the happening and not happening of the event of contract। कि जैसे मैं कहूँ कि अगर ए ने बी से शादी करी तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस वर्ड को यूज करूंगी, इफ इंडिया विन द मैच आई यू विन 200 रुपीज, यू विन, तो वहां पे विनिंग और लूजिंग आ रही है। ठीक है, दैट इज द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, तो वॉइड एग्रीमेंट्स आपके यहां होंगे। अब मैं आता हूं वॉइडेबल पे। वॉइडेबल अभी बताया, जब एक एग्रीमेंट का वैलिड और वॉइड होना डिपेंड करता है सिर्फ एक पार्टी के कंसेंट पे, तो उसे हम वॉइडेबल कहेंगे। अब ये कहाँ मिलता है, ये मिलेगा आपको सेक्शन 19 में, 19A में और समहाउ 20 to 21 में। ये प्रोविजंस है कंसेंट के रिलेटेड और मिस्टेक के रिलेटेड, कि अगर किसी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से ली हुई है तो वो देन कैन बी कम विद द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि अब भैया जैसे कि मैंने सपोज आपकी कंसेंट ज़बरदस्ती ले ली किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और अब आपको बाद में पता चला, परफॉर्म होंगी सारी चीज़ें, तब आपको पता चला कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ। अब आपके ऊपर है, या तो केस कर दो, केस करके प्रूव कर दिया जी फ्रॉडफुल कंसेंट ली, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर हो जाएगा वो। अगर आपने एक्सेप्ट करके उसे चलते रहने दिया तो आपने उसको वैलिड बना दिया। ठीक है, वेरी फर्स्ट वो वैलिड कभी नहीं था, आपकी कंसेंट ने उसे वैलिड बनाया है। ठीक है, सेम विद द मिस्टेक, बट इन अ केस ऑफ वॉइड, एब इनिशियो वॉइड है। अगर कोई पार्टी चाहे भी, जैसे कि मैंने रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आप उसे निभाते रहे, वो वेरी फर्स्ट वॉइड है, आप निभा रहे हो, ये आपकी गलती है, कोर्ट ने तो उसे कभी वैलिड माना ही नहीं, चाहे आप उसे निभाओ मत निभाओ, अगेंस्ट द लॉ है वो। क्लियर, चलो बस यहाँ तक आज हम खत्म करेंगे। एक छोटी सी बात और समझेंगे, एक ब्लू पेंसिल रूल होता है, या फिर मैं कहूं इफ यू एनी टाइम हियर द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ध्यान है आपको, एक्लिप्स क्या था? स्पेलिंग शायद थोड़ी सी गलती होगी, एक्लिप्स देख लेना आप, कॉन्स्टिट्यूशन में है। व्हाट दे सेज कि इफ मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया
और इसका ये वाला पार्ट तो इलीगल है हाँ जी सर, यस सर, और ये वाला लीगल है. हाँ जी सर, इफ दैट पार्ट, अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से सेपरेट कर सकते हैं तो ये वाला पार्ट आगे वैलिड हो जाएगा और ये चलता रहेगा और इस वाले पार्ट को हम वर्ड डिक्लेयर कर देंगे सिर्फ इस किस्से को. दैट इज कॉल्ड द ब्लू पेंसिल रूल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. यस सर, और इन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्लिप्स बोलते हैं कि भैया अगर कोई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको हम नहीं यूज करेंगे, उसको अनइन्फोर्सेबल कर देंगे, बाकी को इन्फोर्स करते रहेंगे. हाँ जी सर, गेट, दैट इज द थिंग रिगार्डिंग द ब्लू पेंसिल रूल. चलो, अब कोई डाउट किसी का? यस सर, चलो एंड करें आज की क्लास. यस सर. ओके देन बाय.